Good evening, everyone. I am Dr. Nupur Gupta. I practice gynecology in Gurgaon. I have an experience of nearly 2 decades and I work at Well Women Clinic as well as I am director in the Department of Obstetrics and Gynecology at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Our today's live session is on women's eye health at the age of 40 years, for which we have Dr. Parul Soni with us. Dr. Parul, we welcome you to the show today. So Dr. Parul has been practicing in Gurugram for over a decade now. She has worked with reputed organizations like Medanta, the Medicity, and Shroff Eye Center. And she moved a step further to set up her dream project in 2010, which is called Complete Eye Care, to accomplish her mission of providing state-of-the-art, world-class eye facilities in a boutique environment. She brings with her the vast experience of prestigious All India Institute of Medical Sciences and has also received training abroad at the University of Pittsburgh Medical Center in US, and she is as well the fellow of Royal College of Surgeons in UK. She is an expert in cataract surgery and its latest advances. She also has a special interest in glaucoma and has led various patient-centric activities like Gurgaon Glaucoma Awareness Walk and Nayan, which is a fight against glaucoma. She is very sound academically. She has numerous international publications as well as a book to her credit. She is well versed with all the recent advances and has a high level of expertise in dealing with all kind of eye diseases. So we welcome you here, Dr. Parul, today to discuss about women's eye health at 40. Thanks a lot, Dr. Nupur, for having me here. And it's my privilege to be here on Facebook Live so that I can share my experiences and give you some tips related to eye care in women at 40. Yeah, thank you, Dr. Parul. So let us start with talking about why are we discussing about women's eye health at the age of 40 years? What is so special about this? Dr. Nupur, what happens though we still consider ourselves at young when we are 40, but our body starts to show some changes which are related to aging. And what happens the moment you hit 40, the eyes muscles start to age. And as a result, the first change that one, especially most of the professional females will notice, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है आपको 40 years के ऊपर पास का चश्मा लगाने की. तो 40 years पे कुछ changes होने लगते हैं और इसीलिए मैं कहूँगी एज एन आई स्पेशलिस्ट कि 40 years इज अ इम्पॉर्टेंट कट ऑफ जिसके ऊपर आपको आई चेंजेस फील होने लगते हैं एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट आई केयर एट 40 years. Yeah, thank you, Dr. Parul. So what should we do to look after our eyes at the age of 40 years? Is there anything special? एज हम अपनी बॉडी का जैसे ध्यान रखते हैं कि भाई हम अपने एक्सरसाइजेस करते हैं, हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं और हम अपनी जनरल फिजिक का ध्यान रखते हैं. सिमिलरली देर आर certain things that we can do for eye care. Number one, we can do eye exercises. We can take care of our diet and we can maintain good eye health और अपना eye checkup routinely कराएं. So these are the few things which I would suggest कि हम eye care के लिए कर सकते हैं. तो डॉक्टर पारुल आई एक्सरसाइज कैसे की जाती है एंड हाउ डज इट हेल्प? डॉक्टर नूपुर, आई एक्सरसाइजेस जैसे सिंपली आजकल एक अच्छी बात हो रही है इंडिया में दैट वी ऑल आर गेयरिंग टुवर्ड्स healthy lifestyle, whether we are talking about the exercises, so people are getting into gymming, they are going in for running, yoga कर रहे हैं लोग, एक healthy lifestyle adopt कर रहे हैं. खाने की बात आप करें तो healthy nutritious diet, organic food, preservative free food, इन सब की बातें करते हैं. तो same way आई भी एक बॉडी का बहुत ही important हिस्सा है. And as an eye specialist, I would say that eyes are one of the most precious gift of God. क्योंकि हमारी eyes के through we say that eyes are window to our soul. So we have to take care of our eyes and exercises play a very important role, especially if you are a working professional or even if you are a housewife. और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इवन आपके स्कूल गोइंग किड्स हैं, तो सबके लिए सिंपल आई एक्सरसाइज आर वेरी बेनिफिशियल. एक तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस को हम बोलते हैं पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज. जैसे हम पुशअप्स करते हैं टू बिल्ड अप आवर आर्म मसल्स एंड लेग मसल्स, सेम वे आई के लिए पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेस होती हैं. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. यू कैन टेक अ सिंपल पेन और अ पेंसिल.
easier way would be कि आप उस पे कुछ alphabets लिख लो ऐसे करके, and then you hold the pen or pencil at arm's length. तो आप उसको कोशिश करके अपने इस लेवल पे रखना है कि आई के लेवल पे रहे, उसको हाँ आपको हाँ डिस्टेंस पे रखना है, फिर आप उसको पास लेके आए कि उसके अल्फाबेट्स को आपको रीड करना है. When you're bringing it close, the alphabet should be seen as single and वो क्लियरली दिखाई देने चाहिए. तो वहां पर आपने रखा, होल्ड करके अराउंड 20 तक काउंट किया, फिर आप पीछे ले गए, फिर आप लेके आए अराउंड 20 तक काउंट किया. सो ऐसे 10 के सेट्स आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेस. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं ये. इसके अच्छा अलावा व्हाट यू हाँ कैन डू, अगर आप काफी ज्यादा कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो यू कैन डू पामिंग. पामिंग के लिए बड़ा सिंपल है कि अपनी आईज को, आप हैंड्स को, सबसे पहले कोविड का टाइम चल रहा है तो हैंड्स को सैनिटाइज कर लो अच्छे से, उसके बाद रब करके अपनी आईज के ऊपर रखिए. सो दिस इज ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग. ओके Then you can do eye rotation. So clockwise and anti-clockwise 10 times आप eyes को rotate कर सकते हो. so that will really Another, help it is in very relieving helpful. the pressure on the eye Yeah, yeah very helpful, Dr. Nupur. And एक बहुत ही अच्छी exercise tip, especially for computer users, that we are in year 2020, and yeah जैसे we are talking about 20 seconds of hand wash. So 20 is easy to remember. yeah And the same rule can be applied for eyes also. So there is a rule of 20-20-20. This means that after 20 minutes of computer usage, आप 20 seconds का break लो और कोई चीज जो 20 feet apart है उसको देखो. तो 20 minutes के computer use के बाद 20 seconds का break and look at something which is 20 feet apart. And this is very helpful. so So these this are will the yeah so this will relax the eye to a large extent correct. yeah So ये बहुत simple exercise है but बहुत helpful है डॉक्टर लोग. तो आप डाइट के थे तो वो क्या डाइट अच्छी रहेगी जो आईज के लिए हेल्दी रहे डॉक्टर नूपुर, जैसे मैं बात कर रही थी कि भाई हम अपनी बॉडी का जैसे ध्यान रखते हैं, तो बॉडी की हम हर एस्पेक्ट को ध्यान रखते हैं ना. हम एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर हम एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं. तो आई के लिए भी कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आई एम श्योर हम सब बात करते हैं कि कैरेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जो भी फ्रूट्स हैं जिसमें रेड कलर होता है, फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज हैं, पपाया है, even mangoes आजकल मिल रहे हैं. So these are very high source of vitamin A and these are very good. Apart from that, अगर आप non vegetarian हो, so fish related products हैं, eggs हैं, then you can consume nuts in good amount. You can take green vegetables which are also very important. But एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अब आजकल everybody is weight conscious. So sometimes you feel कि भाई आप अमाउंट में अपना फूड, आपका इंटेक कम है, हेल्पिंग छोटी है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपके विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक थोड़ा कम हो जाता है. तो ऐसे कंडीशंस में आई वुड सजेस्ट डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम टेकिंग अ सप्लीमेंट. कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्पिंग कम है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो. एंड उसमें आजकल ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल. वो ड्राई आइज के लिए भी अच्छे हैं, आपकी आई सरफेस के लिए भी अच्छे हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो. प्लस इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन यू कैन टेक विटामिन ए सप्लीमेंट्स जो कॉड लीवर ऑयल के फॉर्म में आते हैं. तो डू नॉट हेजिटेट कि सप्लीमेंट्स आपने ले लिए कुछ दिनों के लिए जब आपका डाइट कॉम्प्रोमाइज्ड है. वैसे भी कैल्शियम विटामिन डी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता एग्जैक्टली, जैसे है आप लोग इसीलिए डाइनी में तो सप्लीमेंट्स देते ही हो, देते कैल्शियम ही हैं देते हो, हाँ बिल्कुल देते हो. हाँ तो आईज में भी आराम से ले सकते हैं आप. तो डॉक्टर पारुल आजकल बहुत लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन रूटीन और अननेसेसरी आउटसाइड ट्रैवल भी कम हो गया है. बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, मदर्स को भी घर में हो चाहे बाहर हो उनको बहुत टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करना पड़ता है. सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हो गए हैं, मूवीज हम नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, शॉपिंग हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, और बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी नींद भी पूरी नहीं होती और इसकी वजह से आंखों में दर्द होना, इचिंग होना, कभी ड्राइनेस, किन्हीं लोगों को हेडेक्स या डबल विजन भी हो जाता है. तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि स्क्रीन टाइम के साइड इफेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं? Dr. Nupur, I think you brought up a very important topic, especially in current scenario. लॉकडाउन ने हमारी रूटीन को बिल्कुल चेंज कर दिया है. So अब इवन फॉर स्कूल गोइंग किड्स जो 8 से 9 आवर स्कूल में रहते थे, नाउ दे आर ग्लूड टू स्क्रीन. ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं. एंड इवन पेरेंट्स, आई वुड से हाउसवाइफ्स भी जो हैं वो भी अगर आप देखो तो उनको स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, या तो खुद सोशल साइट्स पे व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, या आप आपको बच्चों को पढ़ा रहे हो, एज यू वेरी करेक्टली सेड कि आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो. तो स्क्रीन टाइम जो हमारा 1-8 घंटे होता था, स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड फॉर प्रोफेशनल जो थोड़ा ज्यादा था, वो सडनली एक्सप्लोजन ऑफ स्क्रीन टाइम.
Now what happens, screen is actually a lot of problem for eyes, क्योंकि जब स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो क्या होता है कि आपको कंटिन्यूअसली छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, उनको फोकस करने में आपकी आई मसल्स में फटीग हो जाती है। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन स्क्रीन यू हैव टू टेक केयर। सबसे पहले तो आप अपने वर्क स्टेशन का ध्यान रखो, यू कैन सी इट ऑन द स्लाइड विच इज डिस्प्लेड, कि भाई अगर आप प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठे हो, कंप्यूटर पे प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठे हो, यू कैन स्ट्रेन योर नेक, यू कैन स्ट्रेन योर बैक, आपके लेग्स में पेन हो सकता है। तो अगर आप बहुत लंबे आवर्स बैठ रहे हो तो वर्क स्टेशन को सबसे पहले करेक्टली पोजीशन करो कि भाई आंख से छोटी थोड़ी लोअर लेवल पे होना चाहिए आपका स्क्रीन। एयर कंडीशनिंग की हवा पीछे से आनी चाहिए, सामने से नहीं आनी चाहिए। एम्बिएंट लाइट ठीक होनी चाहिए। तो ये सब आप अपने मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। पोस्चर बहुत करेक्ट रख के बैठना है, झुकना नहीं है, नहीं तो पता लगा पीठ दर्द होने लग गई आपकी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ध्यान रखो कि भाई कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे जब हम स्टेयर करते हैं, normally we are blinking around 16 to 20 times in a minute. Now when we are working on screen, तो हमारा blink rate एकदम से कम हो जाता है, it becomes 4 to 5 times in a minute. क्योंकि हम स्टेयर करते हैं उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, हम भूल जाते हैं एक्चुअली, वी आर यू नो सो मच engrossed in the screen कि हम भूल जाते हैं। तो आईज की फिल्म ड्राई हो जाती है एंड यू गेट ड्राई आईज, जिसकी वजह से एज यू वर मेंशनिंग डॉक्टर नूपुर की वो रेडनेस होती है, फटीग होता है, ब्लड सब इसी की वजह से होती है, बिकॉज यू डोंट ब्लिंक। और आई स्ट्रेन से हेडेक भी होने लग जाता है जब आई स्ट्रेन से हेडेक होने लग जाता है। तो अगर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस मिले हुए हैं तो अपने ग्लासेस पहनो, अपने वर्क स्टेशन को मॉडिफाई करो, ब्लिंकिंग का ध्यान रखो। एंड अगेन यू नो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आर वंडरफुल ड्रॉप्स, आपकी आईज को अच्छे से मॉइस्ट करके रखती हैं, हाइड्रेटेड रखती हैं। और आजकल प्रिजर्वेटिव फ्री का जमाना है, सो यू नो यू हैव लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो आप आराम से यूज कर सकते हो दिन में 1 बार 2 बार, एंड दे रिफ्रेश योर आईज। एंड एक छोटी सी टिप मैं कहूंगी कि ना लॉट ऑफ पेशेंट्स आस्क कि हम सोने से पहले दवाई डालते हैं, तो यू नो देन आई टेल देम दैट यू नो सोने से पहले दवाई डालने का लॉजिक इसलिए नहीं है कि भी आप तो सोने जा रहे हो, तब आईज तो रेस्ट करेंगी। तो आपको आई ड्रॉप्स तब डालनी है जब आपकी आईज यूज कर रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीन पे काम बैठने जा रहे हो या अपना काम शुरू कर रहे हो, तब आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालो, दैट इज बेटर। हाँ, बिकॉज जब हम सो गए तब तो ऑलरेडी आईज आर ऑलरेडी वेल लुब्रिकेट हो चुकी हैं। अच्छा डॉक्टर पारुल, आप इस बात को बताइए कि हमें आई चेक कितनी बार करना चाहिए? हाउ ऑफन? डॉक्टर नूपुर जी, जैसे यू नो अगेन यू नो आई गो बाय एग्जांपल्स कि आजकल हम प्रिवेंटिव मेडिसिन का जमाना है, सो एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर एनुअल चेकअप। यू नो डॉक्टर पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, कहते हैं हम एनुअल चेकअप करा रहे हैं, हम अपना ब्लड प्रेशर, इवन इफ दे हैव नो इलनेसेस, उनके इवन कंपनी स्पॉन्सर होते तो वो एनुअल चेकअप कराते हैं सारा अपना बॉडी का, कि भाई हार्ट ठीक है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर्स ठीक है, गायनियोप्स सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड आई एम श्योर यू मस्ट आल्सो बी रिकमेंडिंग कि आपका ये ईयरली अपना सर्वाइकल्स में वो करा लो, पैप्समियर करा लो। हाँ बिल्कुल। आई डॉक्टर मैं कहूंगी कि अगर आप 40 के ऊपर हो तो एक बेस लाइन आई चेकअप एट 40 तो बनता ही है, बिकॉज लॉट ऑफ डिजीजेस आर यू नो एसिम्प्टोमेटिक। ग्लूकोमा एसिम्प्टोमेटिक है, कई बार आंखों का नंबर होता है जो आपको नहीं पता होता है। तो डॉक्टर पारुल, आई चेकअप किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट से कराना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाके करना ज्यादा अच्छा है? See, Dr. Nupur, you know, again, you know, optometrist, I'm not saying that I have anything कि भी आप नहीं जा सकते, but अगर सिंपल एक चश्मे का नंबर है तो आप जिस ऑप्टिकल शॉप पे जा रहे हो वो री-वेरीफाई कर लेता है। बट ऑप्टोमेट्रिस्ट cannot check your retina, they can't check your eye pressure, they can't check your nerves. तो I would suggest कि बेसिक चेकअप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जरूर कराएं। इन बिटवीन द ईयर अगर आपको लग रहा है देन यू कैन विजिट एन ऑप्टोमेट्रिस्ट कि भी चश्मा चेक कराना है, बनवाना है, तो वो करवा सकते हैं। बट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को यू कैन नॉट स्किप कि भी हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया नहीं, हम सीधे ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास चले गए। और जब 40 इयर्स होता है, बहुत बार ये ऐसा टाइम है जब हमें डिटेक्ट होता है कि हाइपरटेंशन है या डायबिटीज की टेंडेंसी है या कोई ना कोई ऐसी सिस्टमिक इलनेस है जिसके लिए रेगुलर मेडिकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल थायराइड है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म विमेन में बहुत कॉमन है। तो क्या इन लोगों को जिनमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ है, क्या उन्हें भी आई चेकअप करना चाहिए अपना? Nupur, again, you know, you brought up a very important topic because many a times we don't correlate. मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, यू नो, एंड उनसे जब आपसे पूछो उनसे कि भाई आपको कोई और बीमारी है, तो पहले तो कुछ नहीं बताएंगे, सोचेंगे आई से कोई रिलेशन नहीं, देन यू हैव टू रियली डिग इट
कि भाई आपको बीपी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है। तो यू नो पेशेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है, पेशेंट्स ने आम हेल्दी लोगों के लिए भी, कि हमारी बॉडी इज अ बॉडी इन होल। तो आइज को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इफ यू आर अ डायबिटिक, इफ यू आर अ हाइपरटेंसिव, या आपको थायराइड है, तो ऑल दीज डिजीजेस कैन अफेक्ट योर आईज। डायबिटीज में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, हाइपरटेंशन में भी रेटिना अफेक्ट हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी सिस्टमिक डिजीज है, आर्थराइटिस इनफैक्ट ले लो, या इवन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स कैन हैव ड्राइनेस, सो दीज सिंपल लिटिल डिजीजेस कैन आल्सो अफेक्ट योर आई। आई वुड सजेस्ट कि एक बार जरूर, जैसे पेशेंट्स कम टू यू, तो भाई जैसे वो बाकी सारी बीमारियों के बारे में बता दें, तो आई वुड सजेस्ट कि अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से भी आप शेयर करो कि भाई ये बीमारियां हैं, सो दैट वी कैन चेक यू फ्रॉम दैट एस्पेक्ट आल्सो। हाँ, और बहुत बार ऐसे भी होता है कि प्राइमरी सिम्टम आई का है और फिर आप इवेलुएट करते हैं कि भाई किसी को ये सिस्टमिक इलनेस हो सकती है। बिल्कुल तो, बिल्कुल, तो कभी फिजिशियन को आप रेफर करते हैं, कभी रोमेटोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं एब्सोल्युटली कि एब्सोल्युटली, इट कैन बी, आई कैन बी द प्राइमरी प्रेजेंटिंग ऑर्गन आल्सो। बिल्कुल। हाँ हाँ। इनफैक्ट डायबिटीज के तो चेंजेस कई बार आईज में पिकअप होते हैं, देन वी टेल पेशेंट्स कि भाई आप चेक कराओ, अपनी शुगर चेक कराओ, अपना किडनी स्टेटस चेक कराओ, बिकॉज आई में आप डिटेक्ट करते हो, देन यू कम टू नो कि पेशेंट को प्रॉब्लम है। अच्छा, तो डॉक्टर पारुल, आपने बहुत ही अच्छा हमें गाइड किया कि हमें कैसे अपने आई का चेकअप करना चाहिए, कब करना चाहिए, आई की हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन। तो क्या आप एक बार समराइज कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द टेक होम मैसेज फ्रॉम योर साइड? See, Nupur, I would like to conclude saying that, you know, again, that eyes are very important, और जिनके पास ये gift है, you know, I mean, we can see the entire world, the colors, the happiness with it, and it's our duty that we should be taking care of our eyes. उनका हम अच्छे से ध्यान रखें, whether it is doing eye exercises, whether it is taking care of the nutritional part कि eye के लिए क्या ज़रूरी है, और अपने आईज को थोड़ा एक्सेसिव स्ट्रेन से बचाएं, स्पेशली करंट सिनेरियो में जब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। Or at the end, I would like to say that, you know, because eyes is something that we can donate, और हम सबको प्लेज करना चाहिए कि हम अपनी आईज को डोनेट करें, so that whenever we are leaving this world, at least we can give light to somebody else's life. And अगर हम डोनेट करते हैं तो एटलीस्ट हम 2-3 लोगों की आईज लाइफ में साइड दे सकते हैं, which is a very important gift which anybody can give to anybody else. तो जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, उसका हमें ध्यान रखना है, और जाते समय हमें दूसरे लोगों को कुछ गिफ्ट देके जाना है। दिस विल बी माय टेक होम मैसेज। Thank you so much, Dr. Parul, for enlightening us today about the tips for eye care and essentials so that we can look after our eye health in a healthy manner. And anyone who would like to connect with Dr. Parul, we will share the details and appointment link in the comment box, and she will be there for you. And thank you, Dr. Nupur, for a wonderful session. And it was really nice to be on the platform of Well Women Clinic. And thank you so much for having me here. Yeah. So hope to see you more often. Thank you for coming today. Yeah.